Welcome to CBR English Inside News. This is Pravalika. Moving on to the details. Relief and restoration efforts are in full swing in Machilipatnam, Andhra Pradesh following the heavy rains and disruption caused by Cyclone Montha. The storm brought intense downpours and strong winds leading to waterlogging, power outages and damage to infrastructure across the region. Local authorities, disaster response teams and volunteers are working around the clock to clear debris, restore essential services and support affected families. Temporary shelters have been set up and medical teams are providing care to those in need as the town gradually recovers from the cyclone's impact. Reiterated key promises ahead of the Bihar Assembly elections 2025, framing them as a collective commitment to the people. Speaking in Patna, he pledged to implement the old pension scheme if elected, aiming to restore benefits for government employees. He also announced plans to establish division-wise press clubs and build journalist hostels to support the media community. Addressing administrative reforms, Yadav assured that transfers and postings for government staff, including police, nurses and teachers, would be limited to 70 kilometers radius. He emphasized that Alliance's past achievements, contrasting them with the record of BJP leader Giriraj Singh, asserting their superior governance during the previous tenure. मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे भाई कौन पूछ रहा है? ओवैसी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। और बताइए। देखिए, कल हम लोगों ने जो घोषणा की है, ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था, वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा, हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो, या टीचर्स होती हैं,
उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर दिए? गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल उप मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर भाई दिए? 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया है। नीतीश कुमार जी समझे? ने ट्वीट किया है आपके गवर्नमेंट जॉब में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष यानी कि एनडीए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा। नीतीश कुमार जी ने सर एक बड़ा मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? Minister Mohan Yadav flagged off cyber awareness run in Bhopal organized by Madhya Pradesh Police to promote vigilance against cybercrime. Speaking at the event, CM Yadav said this program follows Prime Minister Modi's initiative to raise awareness against cybercrime. We are working in the same direction and have launched the Cybercrime Protection and Helpline number 1930 to provide better assistance. The run saw enthusiastic participation from students, police personnel and citizens, highlighting the growing concern over digital safety. The state government aims to strengthen public awareness and response mechanisms to tackle online fraud and cyber threats. The Helpline 1930 will serve as a quick access support system for victims of cybercrime across Madhya Pradesh. श्री प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज किया, जिस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार, मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से जनता को ये सुविधा और सौगात दी गई, इस बात की बधाई। द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज किया, जिस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार, मध्य प्रदेश पुलिस के। Delhi woke up to hazardous air conditions as the air quality index was recorded at 307 this morning, placing it in the very poor category according to the Central Pollution Control Board. The spike in pollution levels follows post-Diwali emission and stagnant weather, which have trapped pollutions close to the surface. Several areas including Anand Vihar and India Gate reported even higher AQI readings. Authorities have initiated emergency measures like cloud seeding trials and anti-smog guns to combat the crisis. Health experts advise residents to avoid outdoor activities and use protective masks. The situation remains concerning, with officials urging public cooperation and continued monitoring to prevent further deterioration.
IIT Kanpur's Professor Manindra Agarwal has shared insights from Delhi's recent cloud seeding experiment, noting limited success in inducing rainfall due to low cloud moisture only around 15%. Despite the lack of precipitation, the initiative yielded valuable data. 15 monitoring stations were deployed across the city to track the air pollution and moisture levels. Findings revealed 6 to 10% reduction in PM 2.5 and PM 10 concentration, suggesting that even minimal cloud moisture can contribute to air quality improvement. Agarwal emphasized that while the results fell short of expectations, the experiment provided a foundation for refining future cloud seeding efforts, especially in urban pollution management. The data will inform more targeted interventions in upcoming trials. Did not get a lot of cloud moisture, it was only around 15%. So with that low moisture content, the possibility of making it rain is very small. So we did not achieve success from that perspective, but still we got a lot of very useful information. And not only that, we had set up 15 stations at different parts of Delhi to measure the level of air pollution, the level of moisture, etc. So our data shows that there has been some reduction between 6 to 10% in PM 2.5 and PM 10 concentration. So which shows that even with a very small or low level of moisture in the clouds, when we do the seeding, it does result in some impact, not the impact that one would ideally like to see, but still some impact. And that's an extremely useful information or data for us in order to plan our future seeding experiments. So we did not get a lot of cloud moisture, it was only around 15%. So with that low moisture content, the possibility of making it rain is very small. So we did not achieve success from that perspective, but still we got a lot of very useful information. And not only that, we had set up 15 stations at different parts of Delhi to measure the level of air pollution, the level of moisture, etc. So our data shows that there has been some reduction between 6 to 10% in PM 2.5 and PM 10 concentration. So which shows that even with a very small or low level of moisture in the clouds, when we do the seeding, it does result in some impact, not the impact that one would ideally like to see, but still some impact. And that's an extremely useful information or data for us in order to plan our future. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini, campaigning in Patna for the upcoming Bihar Assembly elections, strongly criticized the INDI alliance. Invoking memories of what he termed the Jungle Raj era, he asserted that the people of Bihar are focused on development and will support the NDI in the 2025 elections. Saini praised Bihar CM Nitish Kumar for increasing the state's budget and contrasted it with the UPA government's allocation of rupees 2 lakh crore, claiming that Prime Minister Narendra Modi has provided rupees 14.5 lakh crore for Bihar's development. He emphasized that law and order has improved, women's safety has increased, and infrastructure has expanded under the NDA's governance. Saini's remarks align with the BJP broader campaign narration, which positions the NDA as a double-engine government, driving Bihar's progress. The statement comes amid a series of rallies by top NDA leaders including PM Modi and Union Home Minister Amit Shah, who have also warned against a return to lawlessness under opposition rule. करके आरजेडी के जो नेता हैं, जो उनके साथ मिल करके उसमें हामी भरते हैं और उनके घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र में शामिल करके उसको लागू करने की बात करते हैं, तो फिर कौन उनके साथ चलेगा। बिहार इनके समय के अंदर किस प्रकार का जंगल राज था, अशिक्षा थी, भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी और उस गुंडागर्दी के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इस प्रकार का
ये जो शासन रहा है इंडी गठबंधन का, उससे कोई नहीं भूल सकता। आज भी अगर उस दौर को याद किया जाए 2005 से पहले, अगर आप लोग देखेंगे, मैं बिहार के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि बिहार के लोग विकास चाहते हैं। बिहार के 2005 में अगर आप लोग देखेंगे, उससे पहले जब ये इंडी गठबंधन के लोग थे, उस वक्त बिहार का जो बजट था वो मात्र 23,500 करोड़ रुपए था। ये बजट था बिहार का, तो विकास की तो कल्पना बहुत दूर की थी, कैसे विकास होगा। और उस बजट के अंदर भी बहुत सारा बजट इनके चहेतों को इनके घर के अंदर चला जाता था, परंतु नीतीश कुमार जी ने आकर के उस बजट को बढ़ाया। और अगर आप लोग देखेंगे, 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक बने। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी, यूपीए की सरकार, ये इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठे थे। मात्र कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने 10 सालों में बिहार के विकास के लिए मात्र 2 लाख करोड़ रुपए भेजे। नरेंद्र मोदी जी ने 14.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पिछले 11 वर्षों में भेजने का काम। बिहार बदला है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, और चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर बिहार गति से बदला है। लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार ये विकसित बिहार हो, और भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प में बिहार भी पीछे नहीं रहेगा, बिहार भी उसके अंदर आगे बढ़ करके काम करेगा। तो लोगों ने मन बनाया है बिहार के, क्योंकि मैं पीछे भी कई स्थानों के ऊपर गया था और आज भी कई स्थानों के ऊपर जाने का मौका मिल रहा है। बिहार के लोग सीधा सीधा आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, इस एनडीए गठबंधन की सरकार, जो हमारे एनडीए के साथी हैं, चाहे चिराग पासवान हैं, और चाहे हमारे जीतन मांझी जी हैं, और चाहे हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये सभी एनडीए के जो साथी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार ये लगातार 6ठी बार नॉन स्टॉप बिहार के अंदर सरकार बन रही है। BJP Jharkhand President Babulal Marandi, speaking in Patna, stated that Prime Minister Narendra Modi has never discriminated in implementing welfare schemes. Even though Muslims have not largely voted for the BJP, he remarked if they have voted for the BJP, they would have benefited even more, but emphasized that all communities have received equal access to government schemes. Marandi's comments aim to highlight the inclusive nature of central welfare initiatives like Ayushman Bharat and PM Awas Yojana. The BJP leaders defend the remark as a testament to Modi's governance model. क्योंकि पहले तो उन्होंने बीजेपी को इन लोगों ने वोट ही कब डाला है। अगर बीजेपी को वोट डाला होता तो हम कहते, और बिना वोट डाले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जितनी भी योजना है, बिना न जाति का न मजहब का कोई भेदभाव किए बगैर सबको उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे अनाज हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे आवास हो, सब प्रकार की योजनाएं। जबकि बीजेपी को लोग वोट नहीं देते हैं, तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत लोग देते होंगे, लेकिन मास में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, तो इसलिए मैं जानता। मेरा विषय नहीं है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बीजेपी को इन लोगों ने वोट ही कब डाला है। अगर बीजेपी को वोट डाला होता तो हम कहते, और बिना वोट डाले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जितनी भी योजना है, बिना न जाति का न मजहब का कोई भेदभाव किए बगैर सबको उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे अनाज हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे आवास हो, सब प्रकार की योजनाएं। जबकि बीजेपी को लोग वोट नहीं देते हैं, तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत लोग देते होंगे, लेकिन मास में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, तो इसलिए मैं।
Union Minister Jitan Ram Manji strongly criticized the Mahagathbandhan's newly released manifesto during a press interaction in Patna, Bihar. He remarked, "We have seen the time of their parents, we have seen Jungle Raj terror rule. There was no name of people development." Nitish Kumar and Prime Minister Narendra Modi said and improved. The Manji further stated the people of Bihar have not forgotten their father's time. They are not getting to walk on a different path. The manifesto is just a piece of paper. There is no truth in it. His comments reflect the BJP stance that the opposition promises lack credibility and fail to address Bihar's developmental needs. मगही में कहा जाता है, बापे पूत पराते घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब इनके पिताजी और माता श्री का हम लोग राज देख चुके हैं, जंगल राज देख चुके हैं, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का कोसों दूर नाम नहीं था। हर तरह से बिहार हमारा एक कांप रहा था। उसको नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने सुधारा है। अब वो कलंक को धोने के लिए डपुरसंखी बात ये कर रहे हैं, डपुरसंखी घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। हम समझते हैं बिहार की जनता का दिमाग इतना कच्चा नहीं है कि जो इनके पिताश्री का राज भूल गया है, और जब पिताश्री जिस कदम पर ये चले थे उससे दूसरे कदम पर ही चलने वाले नहीं हैं, इतना सब लोग समझता है, जिसका हम चर्चा किया अपने पूर्ववर्ष में। तो इस आधार पर हम कर सकते हैं कि घोषणा पत्र कोरी कागज़ है, डपुरसंखी बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस सच्चाई तक जाने में इनको बहुत समय लगेगा, बहुत तरह की बात होगी, तब भले कुछ कर सकते हैं 10-25 वर्ष के बाद। अभी कुछ नहीं हो सकता। जननायक कौन है सर? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कर्पूरी ठाकुर ये लोग कर रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं। अति पिछड़ा के लोग समझे कि जननायक कहा जाता है, आम लोग एक्सेप्ट करता है और जननायक की पदवी देता है। हम मुँह मिठू बने कि हम फलना चीज हैं। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhame visited the remote border of area of Melam, where he engaged with personnel from the Indo-Tibetan Border Police, and during the interaction, Dhame acknowledged the dedication and resilience of the troops stationed in the high altitude region, emphasizing their crucial role in safeguarding India's frontiers. The visit aims to boost the morale and assess the conditions faced by the security forces in the challenging Himalayan terrain. Officials noted that the Chief Minister also reviewed infrastructure and logistical support in the area, reaffirming the state's government commitment to strengthening the border security and welfare measures for deployed personnel. The gesture was widely appreciated as a show of solidarity with the forces operating in extreme conditions. जनप्रतिनिधि व ग्रामवासी और सहभागी संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों का मैं रोबिन कुमार पुलिस बल की 14वीं वाहिनी की मिलम चौकी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सेनानी महोदय से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय को अभ्युदय पुस्तक भेंट करने का कष्ट करें। उपस्थित जनप्रतिनिधि व ग्रामवासी और सहभागी संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों का मैं रोबिन कुमार पुलिस बल की 14वीं वाहिनी की मिलम चौकी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सेनानी महोदय से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय को अभ्युदय पुस्तक भेंट करने का कष्ट करें। उपस्थित जनप्रतिनिधि। BJP leader Dilip Ghosh launched a sharp attack on the TMC MP Abhishek Banerjee during the second phase of the special investigation report. Discussions accusing him of spreading misinformation and making exaggerated claims. Speaking to the media, Ghosh remarked Mamata Banerjee's nephew is ahead of her in lying. He is making tall claims now. Abhishek Banerjee is trying to become a hero by starting a new excuse. He further alleged that similar incidents under the SIR framework have occurred multiple times during the Congress regime, adding, "This is happening 10 times during the Congress party's tenure. What Abhishek Banerjee says doesn't matter." The remarks come amid heightened political tensions in West Bengal, with both BJP and TMC trading barbs over the handling implications of the SIR proceedings. बहुत बोला था सीए नहीं होने देंगे, फिर एसआईआर नहीं होने देंगे। आज उन्हीं के पार्टी के तरफ से BLA 2 का लिस्ट भेजा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को।
तो पूरा सहयोग करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन नया ये बहाना शुरू कर दिया लोगों को भड़काने के लिए, इस पर कोई न जाए। 2023 ট্রেলার দেখেছি একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেখুন অভিষেক ব্যানার্জি उनकी भतीजा ममता बनर्जी भी आगे झूठ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हाथ तोड़ देंगे, पांव तोड़ देंगे, खून की नदी बहा देंगे, क्या क्या बोल रहे थे उनके लोग। अब कैसे वो लोग लाइन में आ गए। हम नया बहाना शुरू करके अभिषेक बनर्जी हीरो बनना चाह रहे हैं। एक हीरो को हमने देखा दिल्ली में, बहुत डायलॉग मार रहे थे। उसी कांग्रेस पार्टी के जमाने में 11 बार 10 बार हुआ है SIR। आप क्यों उल्टा कर रहे हो? तुम संवैधानिक व्यवस्था है। उसी प्रकार ये भी उसी कांग्रेसी कल्चर से आए हैं, बड़े बड़े बातें करना है उनको आता है, काम कुछ नहीं आता है। इसलिए अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन सुभाष पार्टी के प्रतिष्ठाता प्रशांत किशोर का नाम दो जगह में। जो प्रशांत किशोर पूरा देश को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को संविधान सिखा रहे हैं, कानून व्यवस्था सिखा रहे हैं, वो कैसे ऐसे अनैतिक काम कर सकते हैं। बंगाल आए थे अपना बिजनेस करने TMC के साथ, और यहाँ आने के बाद उनकी भी ये दुर्गति हुई है, खुद संविधान की कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ TMC के मेंबर भी बने थे, तो आपका कैसे दो जगह नाम हो सकता है? बड़े बड़े बात कर रहे हैं आप। तो दुर्भाग्य है हमारे देश की, जो आइडियन है, देश के नेतृत्व करने वाले हैं, वो लोग इस प्रकार संविधान का, चुनाव कमीशन का, इसका खिलाफ जा करके दो जगह वोटर लिस्ट में नाम ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? इसका पूरा छानबीन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी दलेर नेता डिम्पल यादव कल कहा है कि NRC देश का आतंक छड़ा है। NRC का आतंक कौन छड़ा रहा है? डिम्पल जो लोग विरोधी के, ये इंडी ग्रुप के लोगों को भड़काने के लिए नया नया तरीका ला करके ये सब कर रहे हैं। कहीं NRC की बात नहीं है। पहले CIR SIR तो पूरा होगा, उसके बाद वोट किया था NRC की बात, तो वोट बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी SIR पूरा देश में पूरा होगा। मुझे लगता है कि चुनाव कमीशन जिस प्रकार इनिशिएटिव लिया है, पूरा काम ठीक ठाक हो जाएगा। পুর নিয়োগ মামলায় আবার তৎপর ইডি, বেলাঘাটায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা, অভিযান আরো কয়েকটি। पश्चिम बंगाल, यहाँ बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ ऊपर से नीचे तक, हजारों करोड़ की हर क्षेत्र में, हर सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी जमीन, कोयला, बालू, हर चीज लूट हो रही है। तो ये अनैतिक जो काम हो रहा है, जो भ्रष्टाचार, उसका छानबीन होना चाहिए। ईडी का ये काम है, और पूरा जहां भी जिसका भी नाम आ रहा है, हर एक व्यक्ति का इंक्वायरी होना चाहिए। समाज में इस भ्रष्टाचार के कारण पूरा अव्यवस्था फैला हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, इसलिए इसको करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी बंगाल को। That's all for now. Stay tuned to CVR English.